औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जॉइंट सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार एसोसिएशन निशान ताहिर भट्ट साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार एसोसिएशन एहतशाम अहमद गुजर साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्टिंग प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार एसोसिएशन कामरान खलील कंबो साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के पैनलिस्ट फार्मर जनरल सेक्रेटरी पीटीबीए फार्मर प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार एसोसिएशन चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा को चेयरमैन एलटीबीए एकेडमी मोहम्मद आसिफ राना साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक से करेंगे। तलावत कुरान पाक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज जाहिद अजीज साहब से कि वो डायस पर तशरीफ लाएं। कैसी आप खैरियत से
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيम शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन आयात में जन्नत के दो बागों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि इनमें नेक सीरत और खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। सबस कलीनों और नफ्स पे तकिया लगाए बैठे होंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल व अज़मत है, उसका नाम बड़ा बाबरकत। ज़ाकल्लाह माशाल्लाह। नात रसूल मकबूल के लिए मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा खतीजातुल कुबरा साहिबा से कि वो एड्रेस पर तशरीफ लें। Ya
फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है जादे मोहम्मद, मेरे होठों पे सितरे मदीना, ताजदारे हरम के करम पे आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। वेलकम एड्रेस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन कामरान खलील कंबो साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Respected Chief Guest, Madam Amna Faiz Bhatti, Chief Commissioner, Regional Tax Office, Lahore. Honorable Guest of Honor, Mr. Bilal Zamir Sahab, Additional Commissioner, Zone 2. Distinguished panelist, Chaudhry Qamar Zaman, former General Secretary, PTBA, and former President LTBA, and Mr. Muhammad Asif Rana, Co-Chairman LTBA Tax Academy. Respected members of Lahore Tax Bar Association, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you here. It is indeed a great privilege for the Lahore Tax Bar Association to host today's important discussion on issue of Income Tax Returns 2025 and glitches of IRS system. This gathering brings together the most respected minds of our tax fraternity, administration, and bar members of address the practical challenges being faced by the taxpayers and practitioners alike. On behalf of the Tax Bar Association, I extend gratitude to our Honorable Chief Guest, Madam Amna Faiz Bhatti, for sparing her valuable time to be with us today. We are equally honored to welcome our guest of honor, Mr. Bilal Zamir Sahab, whose continuous efforts, his work have always been commendable. I also take this moment to acknowledge and presence that Mr. Chaudhry Qamar Zaman and Mr. Asif Rana, who are here to share their insights and experience on today's subject matter as well. The next thing I would like to say and recognize the leadership of the present cabinet and the staff of the tax bar, Mr. Nishad, Asif, Majid, Abdul Rashid, Ghulam Murtaza. Their dedication and hard work have made this event possible. Ladies and gentlemen, the subject of today's discussion is extremely crucial. Each year, taxpayers and professionals face numerous difficulties in the filing process due to technical glitches, system errors, and procedural complexities. It is our collective responsibility to highlight these issues and propose workable solutions for the betterment of the system. I am confident that today's discussion will lead to the meaningful recommendations that will be beneficial for both the tax administrations and the tax practitioners. Once again, I warmly welcome and thankful all of you
all of our honorable guests, members, and participants for joining us together as we shall strive to make the tax system more efficient, transparent, and taxpayer friendly. Hope so that today's discussion will be very beneficial for all of us. Thank you. So nice of you. थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं फार्मर वाइस प्रेसिडेंट हॉट टैक्स बार एसोसिएशन राना काशिफ इलियास साहब को वेलकम करता हूं, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैडम कहीं और इनकी कमिटमेंट है तो इन्होंने जाना जल्दी। तो आज की मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की चीफ गेस्ट चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर मैडम आमना कैस भट्टी साहबा से तो डाइस पर तशरीफ लाएं और आज की जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में इश्यूज हैं उनके ऊपर अपने ख्याल का इजहार करें। सिर्फ आप लोगों की तरह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो I must appreciate the effort of the bar and all the text filing community कि this is a two-way street, क्योंकि आप लोगों के मीडियम के जरिए ही लोग अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी आप लोगों के साथ जो शेयर करनी है कि द नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न जो 8 के 9 माह में अब तक you will find as of today are much more than were filed the last year the same time. So that remains the fact that लोग फाइल कर रहे हैं। और जो इश्यूज है I just wanted to reiterate कि I'm sorry मुझे कुछ हमारी लीगल कैसे कुछ से मुझे जाके भी टेकअप कर ले, बट हैविंग सेड दैट जो भी आपके महारत थे और जो भी आप लोग की इसमें कुछ इश्यूज थे जो आपने एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने उसको एक इस फॉर्म में हमसे ना सिर्फ शेयर किया है, उसको इजीली रिकॉग्नाइजेबल एंड द फैक्ट दैट ये ऐसे लोगों की जो टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं वो ना सिर्फ ये कि आप लोगों ने उसको इनिशिएट किया है थ्रू जस्ट पॉइंटिंग इट आउट बट थ्रू पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने इसको ना सिर्फ हमारे जो DGIT साहब हैं उनसे शेयर किया है बट ऑल्सो टॉक टू मेंबर आईआर ऑपरेशन दैट दिस इज इम्पेरेटिव, क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि अगर लोगों को रिटर्न फाइलिंग के मुश्किल आ रही है that means that is something we need to take care of on a very on a proactive basis. So that has been shared and rest assured that will be taken care of. जहाँ तक 8वें लाहौर की प्रेजेंस का मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही थी, there were a lot of complaints जो कि मुझ तक आई regarding people having those जो कि पासवर्ड का और ईमेल का इशू आ रहा था। जो हमारा फ्रंट डेस्क इस वक्त 8वें का people who have been there today and who were there आज से कोई 2-4 महीने पहले would kind of watch for that physical space। देखिए एक होती है आपकी प्रॉब्लम जो कि IT related है which are not related to as such, यहाँ पे हम the information lies on करके जरूर करवाते हैं, but the physical facilities आपकी आपको physically कोई इशू आ रहा हो वो मेरा पार्ट है। So I will ensure जो भी आपके टैक्स लॉयर्स आ रहे हैं या जो टैक्सपेयर्स themselves आ रहे हैं उनको ना हम सिर्फ अकोमोडेट करें। माय इंचार्ज LRO इस वक्त जो है जमाल ही इज आल्सो हियर, सो काइंडली अगर आपके कोई उस तरह के मुहारकात हैं डू शेयर, क्योंकि हमारा ये होना चाहिए कि पीपल हु हैव एनी इशू इन फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न दे आर अकोमोडेटेड एज पर हमारा जो कि इंटरफेस है यहाँ पे 8वें लाहौर पे। सो जो आपके टैक्स पेज के लॉगिन के और पासवर्ड के इशू आ रहे हैं और जो आप लोग हमारे फ्रंट डेस्क पे आते हैं उसको भी हमने 2 हमारे इस वक्त फ्रंट डेस्क पे ऑफिशियल्स हैं जो उसको केटर कर रहे हैं। रोज की एक लिस्ट बनती है और उसको एज पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम उसको हल करें। नेवरदलेस उसके बावजूद अगर कोई इशू है जमाल अपना मोबाइल नंबर शेयर कीजिए, ठीक है जी। सो इट्स एनी इशू दैट यू हैव ट्रांसपेरेंटली वी विल बी डीलिंग विद इट। अदर देन दैट आई विल बी लीविंग बिहाइंड बिलाल हु आर कॉम्पिटेंट ऑफिसर and because ये इस वक्त IAC है in the zone 2 which has the largest population of tax filers in Pakistan जो कि लाहौर में है, so he will be with you to kind of and बिलाल आप कितनी देर माशाल्लाह रहे थे secretary in FPRS bank over a year, so this is somebody who knows FPR की integrity as well, so we will definitely ensure कि आपके issues expeditiously होंगे। Thank you so much for having me over and I am so grateful to you, but कुछ महारकात ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे जाना था। Thank you so much once again। बिलाल अगर आपने यहाँ पे बना दे and जमाल please stay with us। आप लोग अपनी ही सीटों पे स्टे करें।
सिविलियंस की डिस्ट्रीब्यूशन का हम कर लेते हैं सेल्स काम में। कमर भाई आप ही सारा आसिफ जी सर। जॉइंट सेक्रेटरी और फिनांस सेक्रेटरी साहब से चर्चा आ गया। फिजिकल स्पेस है हमारी आप लोगों को, तो आप जी मैं प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के चीफ गेस्ट साहिबा को सीनियर पेश करें। जी रेडी प्लीज। यस रेडी। यस जी मैं जॉइंट सेक्रेटरी लोटेक्स बार एसोसिएशन जिशान ताहिर भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चीफ गेस्ट साहिबा से सीनियर रिसीव करें। सर प्लीज। जी रेडी प्लीज। यस जी मैं फाइनेंस सेक्रेटरी लोटेक्स बार एसोसिएशन एहतशाम अहमद गुजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीनियर रिसीव करें। जी रेडी प्लीज। यस जी मैं प्रेसिडेंट लोटेक्स बार एसोसिएशन कामरान खलील कंबा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चीफ गेस्ट साहिबा से सीनियर रिसीव करें। जी रेडी प्लीज। जी मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर टेक्स बार मियां असद हनीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज की चीफ गेस्ट से अपना सोवेनियर रिसीव करें। थैंक यू। से हम सूवेनियर आपको रिटर्न फाइल करेंगे क्योंकि ज़्यादा मिल गई है। तो आप ये समझिए आप सबके माशाल्लाह ये जो हमें इस वक्त वी आर हेल्पिंग हैंड इन इंश्योरिंग। जी रेडी प्लीज। एक अखबार में खबर लग जाए कि बहुत मसाइल हो रहे हैं, अगर मैं फिर आपको ये रिपीट कर रही हूँ, अगर इतने मसाइल होते तो मुझे नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न जी रेडी एज प्लीज। पर टुडे एंड एज पर द सेम पीरियड लास्ट ईयर ज़्यादा नया आई होती ज़्यादा टैक्स भी ना आया होता। So that means के लोगों को Thank you. कोई उतने को मसाइल नहीं है भी, तो देखिए but even then जो आपके उनको अच्छी तरीके से क्लास हो रह गया वो जी पैनलिस्ट हमारे रह गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फार्मर जनरल सेक्रेटरी पीटीबी है, फार्मर प्रेसिडेंट लोटेक्स बार एसोसिएशन जी चौधरी कमर जमान साहब से कि वो चीफ गेस्ट साहिबा से सीनियर रिसीव क्या करें। जी राना आसिफ साहब से रिक्वेस्ट है कि वो मैडम से सीनियर रिसीव करें। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट लोटेक्स बार एसोसिएशन कामरान खलील कंबो साहब से कि वो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर बिलाल जमीर साहब एडिशनल कमिश्नर आरटीओ लाहौर उनको शेयर पेश करें। जी रेडी प्लीज। रहबर का वाटर कूलर सबका हो गया। Yes. उसे एज ग्रुप का कोई यहाँ पे है कि नहीं जो रेडी प्लीज। गुलाम करके जमाने का कोई है कि थैंक यू। जी जमाल अब्दुल नासिर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो प्रेसिडेंट साहब से शेयर रिसीव करें। चलिए हमारा जो बंदा है काफी जिक्र उसके लिए कर रहा है। कम सब आप यस जी रेडी प्लीज। यस रेडी। थैंक यू। और शुक्रिया इन अगेन रिपीट करना चाहती हूँ कि ये फिजिकल स्पेस के वहाँ पे हमारी है, इसमें कोशिश है कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी फैसिलिटीज बेहतर करें। एक हमने शेड बनवा दिया है जिसको लोग नीचे इस पे बैठ सके। सिर्फ बारिश हो रही थी इसकी वजह से उसका वो पूरी तरह निकल सके। तो इधर टैक्सेस या रॉयल्स फैसिलिटेटेड साफ सुथरे हॉल में लोगों को बैठने की जगह देते हमें किसी की बात भी सुन सकते। थैंक यू सर। और शुक्रिया गाँव में याद रखिए तो ये मुल्क है तो हम क्या है आपका रिस्पेक्टेड मेंबर अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज का हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का एक मकसद है
कि IRIS सिस्टम के और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और IRIS सिस्टम के जो ग्लिचेस हैं उनसे रिलेटेड हमने एक डिस्कशन का टॉपिक रखा है। ये ओपन हाउस होगा जिसमें आप सब लोगों को मौका मिलेगा कि आप अपने अपने इश्यूज जो हैं वो हम तक पहुंचाएं और इंशाल्लाह ताला हम वो इश्यूज जो हैं वो हायर अप्स में कम्युनिकेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला विल गेट इट रिजॉल्व। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे कि आप जिनके पास भी अगर कोई सवाल है, जिन जिन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वन बाय वन प्लीज बताना शुरू करें। अच्छा सर, एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीगल भी है और थोड़ा सा वो टेक्निकल भी है कि नॉर्मली जो सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन की भी होल्डिंग जो है वो कंपनी या इंस्टीट्यूट कर लेता है। अब वो साथ जो सैलरी ले रहे होते हैं वो साथ कुछ पार्ट टाइम सर्विसेज भी देते हैं। अब वो सर्विसेज जो है वो मिनिमम टैक्स में फॉल करती है, उस पर मिनिमम विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है। लेकिन अब जब हम उसको रिटर्न के अंदर डाटा फीड करते हैं, दोनों इनकम को जब हम कलेक्ट करते हैं और रेट पर, अब सिर्फ 1.5 लाख रुपया जो है इसकी इसमें गलती दी है, 1.5 लाख की वजह से इसको 40,000 रुपये का टैक्स पड़ा है। दोनों जो इंस्टीट्यूट है, जो होल्डिंग एजेंट है, उन्होंने टैक्स करा दी है। ठीक है, तो मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इस पे जितना टैक्स कटना था कट गया। ठीक है, तो सर ये जो स्लैब अभी नेक्स्ट स्लैब में फॉल कर जाता है, इसका ये क्या, इसके बारे में थोड़ा सा अपना बताइएगा क्या इशू तो हमें फेस होता है। जिसमें इशू है तो वो हमने इसको लिख दिया बोर्ड को, तो ये मसला रिजॉल्व करेंगे, बाकी आपके जेन्युइन इशू। बट इसमें इफ यू वांट टू फाइल नॉन सैलरी नॉर्मल रिटर्न, उसमें वाइट थी कि आपका मसला हल हो गया। बट तो सैलरी जारी बात है 50% तो सैलरी में जाएगा, तो इसलिए देयर इज अ ग्लिच इन द सिस्टम, तो वी विल रिजॉल्व इट। 75% सैलरी के रेट से लगाते हैं और 75% से कम इनकम है उसके बिजनेस के रेट है। अब मैं बेसिकली हम इधर से ये चीज, कई लोगों में ये सवाल आए हैं, लंच के कुछ टीचर्स थे उनके ऐसा है कि एफपीओ ने एक आपको ऑलरेडी इस पर डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने एजुकेशन से रिलेटेड खासतौर पे लोग हैं उन सब का अगर सर्विसेज में टैक्स कटा है तो उसको आप सैलरी का हिस्सा कंसिडर करेंगे और उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। एफपीओ का एक ऑर्डर है, मैं अगर कहेंगे तो आपसे शेयर कर दूंगा ऑर्डर। और उसमें उन्होंने बल्कि बोर्ड को ये लिखा था कि ये जो पेटिंग अमाउंट्स हैं, जैसे इन्विजिलेटर की उसने कहीं गया है ड्यूटी की है या उसने कोई पेपर मार्किंग की है, तो वो बेसिकली अलग से सर्विस नहीं है, उसकी जो जॉब है उसी की नेचर की है। उसको तो उन्होंने रिलीफ एजुकेशन की हद तक तो दे दिया। दूसरा हमारा आपको पता है कि सर्विसेज पे अभी तक बोर्ड के साथ ये एक इशू जो हमने बड़े सालों से, जिसके एलिजिनेटर ताहिर भट्ट साहब थे, उसको हमने कोर्ट्स में भी लड़ते रहे और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। तो हमारा यही था कि जब मेरा कम अज कम टैक्स आपने काट लिया है तो एक डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स में जो मेरा पैसा ले जाते हैं और उसके ग्रैब में जो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं मेरे नहीं बनते। मेरा जो टैक्स है मेरी वो उस एक खास अमाउंट की हद तक नहीं है। मेरी जो लाइबिलिटी है वो एग्रीगेटिंग है। किसी भी टैक्स पेयर की जो लाइबिलिटी है वो एग्रीगेटिंग है। उसने बिजनेस किया है, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसने सप्लाईज दी हैं, अगर तो उसका टैक्स जो है उसने इंपोर्ट किया है, अगर तो उसका जो टैक्स है मिनिमम उससे लाइबिलिटी बढ़ती है तो फिर आपको टैक्स चार्ज करना चाहिए। ये सेक्टोरियल बेस पे अलग अलग करके उसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती कि हम एक बंदा है वो बिजली के बिल का भी मिनिमम अलग दे, दूसरा वो इंपोर्ट का अलग दे, तीसरा वो सर्विसेज अगर प्रोवाइड की है उसका अलग दे। ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो मिनिमम टैक्स है वो पूरी दुनिया में जो टैक्सेशन है वो एक ही टैक्स होता है। कम अज कम भी अगर टैक्स का, वैसे तो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं है,
लेकिन जहाँ टैक्सेशन है वो सिंगल टैक्सेशन होती है, एक बंदे से 3 तरह के टैक्स नहीं होंगे उसके। तो एजुकेशन की हद तक तो आपका ये इशू रिजॉल्व है, बाकी वो उसी तरह ही है। बाकी उसमें फिर एक तरीका का ये है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसके अगेंस्ट एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, फिर आपकी हाँ ठीक है, इसलिए एक आदमी सर वो इलॉजिकल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अब किसी ने 20 लाख रुपए की सर्विसेज है, तो उसको जब आप टैक्स बनाते हैं तो वो 35% के स्लैब में गया तो 35,000 बना देगा ना नया, तो उसका तो लाख रुपए में खतरा डालने से यही बनता है जो एफडीआर का सिस्टम कर रहा है, फिर आपको करते हैं। यही सारा जो मैडम ने भी लेटर उन्होंने दिखाया कि हमने जो बाहर की तरफ से लेटर दो लिखे थे, ये वही सारा सामने है। हमने इनको कहा कि ये चीजें हैं जिसको आप ठीक कर दें, ताकि जो नॉर्मल रिटर्न तो फाइल हो रही है, सिर्फ सैलरी की रिटर्न उसने फाइल कर दी, जिसकी छोटी सी बिजनेस की आम रिटर्न थी उसने फाइल कर दी। अब जहाँ जहाँ टेक्निकलिटीज हैं, एक से ज्यादा इनकम क्लब होके आ रही है और मिनिमम टैक्स का ग्रैब आता है या फिक्स टैक्स का आता है, तो वहाँ सारी प्रॉब्लम स्टिल दे, वो रिटर्न जो बड़ी रिटर्न है वो गिरती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमने जो DGIT हैं उनसे भी उन्होंने रब्ता किया और उनको कहा है कि इसको एट अर्लिएस्ट रिजॉल्व करें जो लॉ टैक्स बारने की किए हैं, ताकि जो लोग पेंडिंग अपनी रिटर्न पाएं। सर एक इशू और है, अभी तक रिटर्न के अंदर 2018 में कोई स्कीम आई थी और वो मेरे ख्याल में वो लैप्स हो गई है, मेरे अभी भी रिटर्न में शो हो रही है, उसको भी उसमें भी कुछ कौन सी कोड में मुझे बता दें। 2018 का है, मैं वो आपको शेयर कर दूं। बोर्ड चेक कर रहे हैं उसको देख लें। सर वो एक्चुअली प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी कोई, जी जी हाँ जी, वो एक टैब है अभी वो शो ही इररिलेवेंट है, मेरे ख्याल में उसका मैं वो शेयर कर दूंगा जी। वो जो एसेट रिपेट्रिएशन वाली है वो उसकी बात कर रहे हैं। सर ये एक क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जाती है, किसी का कुछ ओपिनियन है, किसी का कुछ ओपिनियन है। ये सर ये वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी की कॉस्ट के बारे में, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है सर उसके बारे में जो डिसीज से प्रॉपर्टी आती है उसकी कॉस्ट जो डिक्लेरेशन है वो कहीं पे ओपिनियन है जी उसकी कॉस्ट तो उसने पे की है वो करें, कुछ कहते हैं मार्केट वैल्यू करें। इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजन एज पर लॉ जो है वो कहीं उसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा देंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट। राना साहब ने काफी डिस्कशन भी किया, मैं कहता है सब उसको जी इसमें अपना नेक साहब इसमें बेसिकली जो है ना जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको मिलती है वो सेक्शन 79 है, उसका सबसेक्शन 3 है, उसकी क्लॉज ए आगे वो ये कहती है कि जो एसेट आपको डिसीज से मिलेगा तो वो जो एसेट पहले एक क्लॉज ये कहती है कि वो सेम कैरेक्टर का होना चाहिए, एसेट वही होना चाहिए जो उससे आपको ट्रांसफर होना है। दूसरा वो कहती है कि जो जिस कॉस्ट के ऊपर उसने खरीदा था वही कॉस्ट आपके उसको डिक्लेयर करनी चाहिए, मतलब सेम कॉस्ट के ऊपर ही वो डिक्लेयर करेगा। तो ये 79 इसके ऊपर बड़ा क्लियर है, तो वही कॉस्ट आएगी जो कॉस्ट जिस कॉस्ट के ऊपर जो है डिसीज ने प्रॉपर्टी परचेज की थी, ये उसी को जो सक्सेशन है उसमें वही वो डिक्लेयर करेगा। आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, अगर तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो वहाँ पे कॉस्ट वैल्यू होगी, वो कॉस्ट वैल्यू ही आगे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर उनकी भी कहीं से इनहेरिटेंस ही आई तो जीरो वैल्यू होगी या मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू आएगी, तो उसी पे ही आगे ट्रांसफर होगी जो वैल्यू डिक्लेयर। ये ओपिनियन कई लोगों ने दिया है, कल आईसीएमए में सर सेमिनार था, मैं हम क्लियर कर दूं, और अब्दुल साहब मैंने उनसे स्पेसिफिकली ये बात की, मैंने कहा सर कहते नहीं जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना वो आपने नहीं वो मैं जो फेयर मार्केट वैल्यू गुजारिश और सर वो प्रॉपर्टी कमर्शियल 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दिख रही है, 2 साल का होल्डिंग पीरियड है, उस पर टैक्स इतना ज्यादा लगेगा। ये मैं गुजारिश करने लगा हूँ इससे वो एक पहले अलग बात है। ये जो कानून क्या कहता है जो 79 है वो बड़ा कानून पे जा रहे हैं ना, वो 79 जो राणा साहब ने कहा था बड़ा क्लियर है। देखिए इसमें पहले जो इससे पहले जो था ना वो ये प्रोविजन मौजूद थी, वो अब ऑब्सोलीट हो गई, खत्म हो गई है। वो ये थी कि अगर डिसीज से भी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको तो वो जो मार्केट वैल्यू होगी FMV सेक्शन 68 के मुताबिक, सेक्शन 68 के मुताबिक वो उसके मुताबिक आप उसकी वो कॉस्ट लेंगे जो भी वो प्रवेश करे।
अब वो खत्म हो चुका, वो मिट हो चुका हुआ है। अब 79 इसमें तो ये मौजूद है थी। अच्छा, इसमें ये है कि सर जमाल जो है एक्चुअली प्लीज लिसन, सर जमाल कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट में, जरा इनकी बात सुन रहे थे। ये सर जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है ना, ये प्रैक्टिकली जीरो डिक्लेयर हो रही होती है। जब वो सेल होती है तो फिर उसका अमाउंट रिटर्न में शो होती है। तो प्रैक्टिकली तो ये हो रहा है कि जीरो शो होती है, तो जब सेल होती है तो फिर उसकी अमाउंट ऐड हो जाती है रिटर्न में। लेकिन देखिए कि लॉ जब मौजूद है तो फिर अजम्पशन नहीं कर रही है। अभी ये और डाल के कुछ 2-3 लाख का मैं अगर उसको गेम डाल दूं कल को आपका कोई नौकरी आ जाए भाई 10 करोड़ के ऊपर इस पे सेम करैक्टर में जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर जो मसला बता रहे थे कि भाई जो है ना फेयर मार्केट वैल्यू पे वो टैक्स हो जाएगी, तो क्या इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है कि हम सेम करैक्टर में कहें कि होल्डिंग पीरियड भी फिर वहीं से काउंट होगा? अगर कॉस्ट वहीं से काउंट होगी तो होल्डिंग इस ट्रांसफर को रिकॉग्नाइज ही ना किया जाए कि गेन के पर्पस के लिए होल्डिंग पीरियड भी वहीं से गिना जाए जैसे सेम करैक्टर, क्योंकि सेम करैक्टर में हम लेके आ रहे हैं, जीरो पे लेके आ रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर्टी शुड बी कंसीडर्ड एज हेल्ड in his possession for the purpose of gain right from the time of purchase. नहीं, उसमें देखिए उसकी इंटरप्रिटेशन ये है, देखिए जरा वो कीजिए, ये सेम करैक्टर से मुराद जीरो वैल्यू नहीं है। सेम करैक्टर से मुराद अगर कोई प्रॉपर्टी प्लॉट है तो प्लॉट ही कंसीडर होगा, गड़ना बन गया, कंस्ट्रक्टेड ना हो, ये उसका जो देखिए लॉ की जो लेजिस्लेचर होता है ना, उस वो इंटेंशन जो उसकी इंटेंशन होती है वो रियल पर्पस है लॉ को इंटरप्रेट करने का। अगर अपने पास से अगर कोई चीज आप इंपोर्ट करेंगे ना, कोई भी चीज प्रिजम्पशन की बेस के ऊपर, तो वो जो लेजिस्लेचर है उसको भी आप सुपरसीड कर देंगे और वो जो लाज है वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेम करैक्टर का मतलब है प्रॉपर्टी का जो नेचर है वो देखनी है आपने, सब्जेक्ट मैटर देखना वो क्या है। मतलब होल्डिंग पीरियड नहीं है तो इनफैक्ट इनहेरिटेंस टैक्स हो गए प्रैक्टिकली। अभी इस वक्त जो है ना वो इनहेरिटेंस जो है वो टैक्स ही है। वो उसकी वजह ये है कि लॉ में अभी इस वक्त तक कोई क्लैरिटी नहीं है सर। वैसे जहाँ जहाँ इनहेरिटेंस टैक्स होती है वहाँ अलग से लॉ है इसका। ये मतलब आप अगर इनहेरिटेंस को टैक्स करना हाँ इनहेरिटेंस को अगर टैक्स करना मकसूद है लेजिस्लेचर का, तो उस पर एक्सप्रेस प्रोविजन होनी चाहिए, क्योंकि ये डबल टैक्सेशन हो जाएगी। ऑलरेडी टैक्स अमाउंट से एसेट क्रिएट हुआ और ट्रांसफर पे फिर इनहेरिटेंस पे फिर टैक्स हो गया। नहीं, उसमें देखिए ये डबल जेबर्डी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये आप अगर सेक्शन पढ़ेंगे ना आप, तो ये जो डिस्पोजल है ना ये इसी वक्त से आ जाती है जब आपको सक्सेशन के लिए कोई चीज मिलती है। ये भी डिस्पोजल ही की डेफिनेशन में आती है 75 में, डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट। तो ये आपकी डिस्पोजल ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पे कर दिया तब ये नहीं पे करेगा। ये नहीं, आपकी बात ये लार्ज एनोमली है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लार्ज एनोमली है। वी शुड राइट फॉर दिस के ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर अब प्रेजेंटली हम जो लॉ देखें तो वो इसी तरह ही इंटेंशन हाँ इंटेंशन है नहीं है, बेसिकली उसको टैक्स करने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो इस वक्त लाया वो यही करे। तो मेरा ख्याल है कि अनोमली बनती है, हमें इस पर लिखना चाहिए। तो मैं नोट कर दें ना सेक्रेटरी साहब के बारे में। तो मैं दूसरा क्वेश्चन करना चाह रहा था, इससे ये तो आपने कर लिया इसकी। मेरी बिलाल साहब एक आपसे एक चीज़ ये है कि अभी ये जो एसएमई की रिटर्न्स अभी इनेबल की है एफपीआर में जो अवेलेबल है आईआरएस के ऊपर, इसमें अगर आप देखें तो जो एसएमई है उसको जो उसके रूल 4 में जो फिक्स टैक्स को और फाइनल टैक्स को जब वो ऑप्ट करता है उसमें वो इट्स नॉट जस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स, उसमें वो जब आप उसके रूल्स अब 14 शेड्यूल के रूल 6 में जाते हैं तो उसमें वो एक्सपोर्ट्स को भी कहते हैं कि वो सेम रेट पे होगा, लेकिन जब आप रिटर्न में एक्सपोर्ट्स की कोई प्रोविजन नहीं है कि अदर्स में डाल दें तो डाल दें, स्पेसिफिक प्रोविजन कोई नहीं है एक तो उसकी नंबर 1। ये क्योंकि अभी लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन है ऐसे नहीं सर, ये 2021 की है रूम पर इम्प्रूवमेंट है जी ठीक, मैं वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ।
अच्छा, और दूसरा जो इसमें है वो ये कि आप जो इसको जब इसको आप इधर इसमें एक्सपोर्ट में नहीं लेते ना, ये किसी और भी अगर कोई आपकी सोर्स है इनकम की तो वो भी ये प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसमें इशू ये आ रहा है कि जो मेरा टैक्स कटा हुआ है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मैंने उसका भी इसमें एडजस्टमेंट लेनी, और जो मेरा रिड्यूस रेट टैक्स रेट सर्टिफिकेट मुझे मिलता है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करता है, मेरी जो डिडक्शन है वो रिड्यूस रेट पे होगी उसकी 153(1)(a) की जो गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन वो मेरे एक्सपोर्ट को 154 को डील ही नहीं कर रहा ना सिरे से, उसमें प्रोविजन ही नहीं है, वो टेक्निकली उसमें प्रोविजन इसलिए इसमें जो उसकी एक्सपोर्ट की जो चेंज किया कि उसके अंदर प्रोविजन नहीं है, तो मैं जब सर्टिफिकेट लेता हूँ तो उसमें टेक्निकल रीजन वजह ये बन जाती है कि ये आप इशू करते हैं 153(4) में, 153(4) जो है वो 154 को वैसे कैटर नहीं कर सकता। इस एनॉमली को जो है काइंडली आप एड्रेस करें, इसकी जो रिटर्न अभी तो शुरू हुई है, अभी हम जो फाइल कर रहे हैं एसएमई की उसमें हम उसको अगस्त में जाके डाल रहे हैं एक्सपोर्ट को, लेकिन हमें उसका टैक्स पूरा उधर जो है वो 2% पे होना करना पड़ता है। ये मैं नोट कर लिए, मैं ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द सीनियर। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, उसका जो बेसिक मुझे जो अपेरेंटली जो मेरी राय है उसमें कि बेसिक उसका जो एसएमई वाले का पर्पस था वो ये था कि हम एक फिक्स टैक्स ले लें इनसे इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म, एक फिक्स टैक्स ले लें कि वो आपकी एक्सपोर्ट का है, आपका लोकल सेल का है, कोई भी आपका पोर्शन है सर्विसेज का जो आपके एम्बेड में है। मुझे आप बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए और जो उसके क्राइटेरिया उसके मुताबिक मुझे मिनिमम इस टर्नओवर पे आपने इतना दे देना है, इससे आपका टर्नओवर बढ़ता है तो आपने ये देना है, इससे बढ़ता है तो आपने ये देना है। उसने बेसिकली जो हमारा बेंचमार्क रखा वहाँ फिक्स टैक्सेशन का टर्नओवर से रख दिया कि इस टर्नओवर पे आपने ये टैक्स दे देना, ये फिक्स टैक्स, इसके बाद फिक्स फाइनल कि आपने फाइनल टैक्स दे देना, इसके बाद आपकी कुल लायबिलिटी। इसमें आपका ना 214 सी है ना 177, कुछ नहीं है इसका, इसीलिए तो उसको निकाला ना। अच्छा, अब जो मुझे नजर आती है अपेरेंटली जो आपकी बात के बाद कि एक्सपोर्ट जो है वो तो ऑलरेडी टैक्स है, ठीक है, अब वो चली गई इस साल में जो प्रेजेंट ईयर है 25 इसमें तो चली गई मिनिमम टैक्स में, उसको एक्सेप्शन दी गई है रूल 14 में, रूल 14 का जो रूल 6 है उसमें एक्सेप्शन दी गई है कि जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स है दैट विल आल्सो बी ऑन द सेम फुटिंग, उसका वही सेम रेट एप्लीकेबल होगा जो उसके रूल 4 में कि अगर उसकी 100 मिलियन से ज्यादा है ग्रॉस टर्नओवर तो फिर वो 0.25, और अगर 250 तक है और 100 से ज्यादा है तो फिर 0.5%। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर कि उसमें शामिल कर दिया ना आपका वो भी टर्नओवर आपका शामिल कर दिया, जो लोकल वाला था वो क्लब करके आपकी जो विद होल्डिंग है वो आपने एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट मेरी प्रॉब्लम है उसमें प्रोविजन ही नहीं है ना रिटर्न के अंदर लिखने की प्रोविजन नहीं है आपकी बात है। और मेरी रिड्यूस रेट जो टैक्स रेट सर्टिफिकेट है मुझे उसमें भी उसका एडवांटेज ही मिल रहा है ना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ 153(1)(a) की आती है, 154 की मुझे उस पर मिल ही नहीं रही ना डिडक्शन आप कहते हैं कि उसमें देखिए 1% टैक्स हो गया, 1% एडवांस टैक्स हो गया। जी और फिर जहाँ पे आप दूसरी इसमें नॉर्मली जो ये आएगी वो ये आती है कि जब आपकी रिसीट्स जो है वो एफटीआर में फॉल करती हैं तो उस सूरत में एडवांस टैक्स तो आपके ऊपर पेएबल रहते ही नहीं, 147 डज नॉट अप्लाई। व्हेन 147 डज नॉट अप्लाई तो आपका एडवांस टैक्स तो 1% वैसे ही उठ जाता है उसमें। तो दैट इज अनदर एनॉमली जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए रिड्यूस टैक्स रेट सर्टिफिकेट में तो ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। मैंने नोट कर लिया, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है पहुंचा देंगे। दो चीजें, एक एडवांस टैक्स और दूसरा जी सर, एक इशू और भी रिटर्न में आ रहा है कि प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 जो बैंक जो करता है वो 15% है, जिसमें कुछ सूरतों में बैंक अगर 20% या 30% रिजोर्ट कर लेता है तो वो 20% हो गया, 20 कुछ लोगों में 30% के अगर उन्होंने किया हुआ है लास्ट ईयर में तो वो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं देता, उसको वो कहीं पे भी वो एडजस्ट नहीं करता बाद में, जबकि पिछले साल में अगर टैक्स ज्यादा भी होता था तो उसकी एडजस्टमेंट मिल जाती थी।
ये 25 वाले में नहीं कर रहा था। ये अभी ये adjustment नहीं होता। लास्ट ईयर आपने देखा होगा रिटर्न में जब 151 का टैक्स कटता आप जाते थे उसका जो एडजस्टमेंट मिलती थी आपको जी जी इस दफा ये ग्लिच है रिटर्न तो वी नो दिस वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड प्रोसीजर्स टू लुक इनटू दिस राइट मेरा क्वेश्चन रेंटल इनकम पे है कि जब हम लोग उसको सिस्टम में डालते हैं तो वो टैक्स ज़्यादा काटते हैं, तो टैक्स ज़्यादा काटते हैं सिस्टम, जबकि फिजिकली जब उसकी मैनुअल वर्किंग करते हैं तो टैक्स कम नहीं जो आप हमारे कैलकुलेशन में गलती है कैलकुलेशन में आप कहते हैं कि जो रेंटल इनकम अगर हम सिर्फ डालें उसमें जी जी तो जो टैक्स बना रहा है वो लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है जब उसको किस पे कर लेता है वो ग्रास अमाउंट पे तो नहीं कर रहा टोटल ले रहा है, टोटल पे ले रहा है ग्रास के ऊपर वही कह रहा हूँ ना, उस 1/5 तो हमारा अलाउंस है ना, 15 ये वाले अलाउंसेस जो है सिस्टम में उसका क्रेडिट नहीं दे रहा। वो जब रिटर्न डालते हैं निकालते हैं, जब कॉम्पिटिशन जाते हैं तो वहाँ पर जो टैक्स चार्ज आ रहा है ना उसके मुताबिक वो डिफरेंस आ रहा है, उसका कैलकुलेशन एरर आ रहा है। जी और थैंक यू। दो तीन सवाल है मेरे रिटर्न से रेलेवेंट है लेकिन थोड़ा सा उसमें कानूनी नुक्ता भी है। अच्छा एक तो ये भी बात जो की है ना प्रॉपर्टी की, ये है पाकिस्तान में सिचुएटेड प्रॉपर्टी है। अगर किसी बंदे की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वाहिद के मुल्क में है उसकी लेकिन इनहेरिटेड है, वो डिस्पोज हो अगर डिस्पोज हो तो वो किस हेड में कैटेगराइज होगी, उसकी मतलब गेन आएगा, उसकी कॉस्ट कैसे ली जाएगी, क्योंकि जो अभी ये जो सेक्शन जो तो ये जो अभी वेल्थ स्टेटमेंट जो है 116 ए की लिखी जाती है स्टेटमेंट, उसमें अगर उन्होंने कोई वैल्यू लिखी है पहले से अगर डिक्लेयर है तो क्या उस पर जानी है या वो जब से या उससे पहले की है, यानी मेरे एक केस में 1991 की प्रॉपर्टी है तो क्या उसके ऊपर जो है ये पीरियड का लगेगा कि 6 साल वाला जो पीरियड है लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए या अदर इनकम में आएगी, एक तो ये दूसरा सर प्रॉफिट ऑफ ये जो आपका बहबूद या पीबीए जो है इसके ऊपर लॉ में लिखा है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो अगर आप जब अदर इनकम कोई और भी है आपकी तो वो उसको स्लैब में डालकर रेट पर्पस के लिए उसको ऐड कर देता है, बाद में उसको एवरेज आउट करके उसका क्रेडिट देता है, बेयर देता है। अब उसका नुकसान ये है कि मेरे अभी एक क्लाइंट के केस में वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का टैक्स का जो है ना वो अफेक्ट आ रहा है, वो टैक्स इंक्रीज हो रहा है, उसकी 20 लाख रुपए की 18 लाख की तकरीबन है प्रॉपर्टी डेट और वो पीबीए जो है दो जो पीबीए और बहबूद की इनकम है, उसकी वजह से एक तो वो हो रहा है, दूसरा जो है ना उसमें इम्पैक्ट आ रहा है 4AB का भी जो सरचार्ज है, तो वो दोनों को मिलाकर 4 लाख रुपया जायद टैक्स बना रहा है। तो इसमें क्योंकि लॉ ने ये नहीं कहा है कि ये जो इसके ऊपर 5% टैक्स होगा ये फाइनल होगा, ये मतलब किस कैटेगरी में होना है इसमें, क्या दो अदर इनकम जो है उसमें अगर ऐड होनी है या नहीं होनी है, ये भी एक डॉक्टर साहब ये मसला है, क्योंकि अब दूसरी तरफ देखें तो 15% टैक्स है या कोई भी और भी टैक्स है तो वो फाइनल में है, यानी 5 मिलियन तक, ये फाइनल में नहीं है, ये इनकम में ऐड करता है इसको। और एक जो पेंशन है अभी तो ये लॉ पेंशन का चेंज हो गया है, तो रिटर्न में 2 किस्म की पेंशन आ रही होती है, एक पेंशन आ रही है 12 सेक्शन 12 सब सेक्शन 2F में 12(2)(f) में, एक सेक्शन अदर सोर्स में जो है ना वो 39 में भी आ रही होती है। तो अगर एक बंदे की एक ही पेंशन है तो वो कहाँ मेंशन करेगा उसको, यानी वो सैलरी वाले पोर्शन में जाके मेंशन करेगा उसको 12(2)(f) में या उसको अदर सोर्स में लिखनी चाहिए। दो अगर पेंशन हो तो फिर तो बात समझ में है ना कि हायर जो है वो आपकी एग्जाम थी 2025 तक की, तो उससे पहले जो है वो यानी अब आपके केस में जो है वो कहाँ उसको मेंशन होना है, यानी 12(2)(f) में होना है या अदर सोर्स में होना है। 3 सवाल हो गए। पहले में एक चीज रह गई जो मैं अंडरस्टैंड कर नहीं सका या साहब नहीं समझ सके, आपने कहा कि पाकिस्तान से बाहर उनका एसेट है
इनहेरिटेंस है, आपने लफ्ज यूज किया सेल हो गया, उनकी डेथ के बाद सेल हुआ एसेट, और पहले उनकी डेथ के बाद जो है वो दोनों के नाम पे चला है, 2 बेटे थे, ट्रांसफर हो गया। हाँ ट्रांसफर हुआ है, यानी इनहेरिटेंस चला मतलब। अब जो है उसके बाद फिर उन्होंने डिस्पोज किया। ये जो बेटे हैं उनके पाकिस्तान में रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे, जो स्टेटस है सबसे पहले टैक्सेशन का वो 11(5) है और 11(6) है। 11(5) ये कहता है कि अगर जो है वो ये जो रेजिडेंट पर्सन है उसकी चाहे पाकिस्तान की इनकम है या बाहर की इनकम है वो टैक्सेशन में आएगी, और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम आएगी और रेड भी होगी 101 के साथ, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के साथ। अब ये बेटे जो हैं ये दोनों जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं और ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो हुई है वो सक्सेशन के जरिए हुई है, इनके पास आ गई है। अब जो लॉ है वो पाकिस्तान में ही लगेगा, जो आपको अभी 79 में बताया गया है कि सक्सेशन में जो है वो बिक गई है, बिक गई है, तो वो कॉस्ट तो वही देंगे जो 79(3)(a) और B में लिखा हुआ है। B में जो लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट होगी जो डिसीज की होगी वही कॉस्ट उसके पास आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो जो बिक गई है तो वो आपका जो सिस्टम जो है वो तो 236C जो है वो मेरा ले लेता है, वो उसके ऊपर बाहर भी पाकिस्तान में बिकी है, बाहर ही बिकी है, तो फिर तो बाहर बिक गई है तो गेम रियलाइज हो गया पाकिस्तान का बंदा है, नो रेजिडेंट पर्सन है ना, गेम भी नहीं आया, उन्होंने बाहर ही कोई और प्रॉपर्टी खरीदी। नहीं असल इसमें ये अभी का डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू आप बुटाना कुछ कहना चाह रहे हैं। सर इसमें एक ही बात से ऐड करना चाहेंगे, वैसे तो जो आप बता रहे हैं टैक्सेबिलिटी यही है, लेकिन ज्यादातर मुल्कों के साथ हमारा ट्रीटी है और प्रॉपर्टी में डिस्पोजल पे ना ज्यादातर मुल्कों के जहाँ प्रॉपर्टी होती है वहाँ राइट होता है, तो ज्यादा चांसेस देंगे कि किसी दोस्त मुल्क में ही होगी यूएई वगैरह में, तो वहाँ शायद टैक्स वहाँ का लगेगा या वहीं का, तो उसके लिए तो मालूम होना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा ये जमीन साहब इसमें गेन पे टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी को लाया गया है, राइट उनके पास है, एग्रीमेंट है हमारा। हाँ वो ये 107 सेक्शन है आपका ट्रीटी का इनकम टैक्स का, अगर उन्होंने उधर टैक्स पेड कर दिया है, ट्रीटी पाकिस्तान के साथ नहीं है, अगर उधर टैक्स पेड हो गया तो वो 103 में फिर टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उधर सर टैक्स नहीं उसके ऊपर नहीं है तो फिर खत्म होगी बात, वो टैक्स फ्री जोन में आ गया, ठीक है। उसके लिए भी इनको ट्रीटी पढ़ना पड़ेगा। मैं ये सर नहीं अगर वो जो बेसिक बात है ना, देखिए उसने जो टैक्स चार्ज करने का प्यार था वो उधर का, अगर वहाँ एग्जम्पशन है तो यहाँ पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, टैक्सेशन ट्रीटी के मुताबिक नहीं होगी यहाँ, अगर वहाँ टैक्स फ्री जोन है तो फिर यहाँ नहीं होगा। अच्छा दूसरा आपका सवाल था पेंशन वाला, नहीं सर इसमें अब मैंने जो ली है प्रॉपर्टी वहाँ मैं उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसका इंक्लूड डालना है, तो जाहिर है मैं 116 की स्टेटमेंट देखता हूँ, तो मैं वहाँ यहाँ पर रियलाइज जब तक नहीं करूँगा मेरा एसेट एस्टैब्लिश नहीं होगा, मैं वेल्थ रिकंसिलिएशन में उसको डालूंगा, इनकम टैक्स रिटर्न में डालूंगा, कहाँ डालूंगा उन पैसों वहाँ जा मेरा एसेट पर डाला वो तो खरीदा वो डाले, मैंने वो डाल दिया, पहले जीरो पे डिक्लेयर है, हाँ ठीक है ना, गेन उसका रियलाइज आप करेंगे, गेन तो डालेंगे इनफ्लो में पड़ेगा ना, इनफ्लो में एग्जाम्पल इनफ्लो में गेन। ये एक क्वेश्चन मेरा है, एक मिनट 3 सवाल, दूसरा है पीपीए और जो हाँ उसमें देखें जो आपको जो किसी भी जगह रिबेट मिलना है या टैक्स का क्रेडिट मिलना है ना, वो आपको फर्स्ट इनकम का, यानी अब आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि अगर आपकी 10 लाख इनकम है आपकी जो एग्जाम्पल है और 10 लाख इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल है, तो जो रेट्स आपको चार्ज होने हैं वो टैक्सेबल पे 11 लाख से लेके 20 लाख तक जो हमारा सिस्टम करता है, ठीक है। यहाँ जो आपका 2 सूते हैं जो आपको क्रेडिट मिल रहा है वो फर्स्ट इनकम के ऊपर पहले 10 लाख के ऊपर, अगर आपकी बहबूद से 10 लाख की इनकम है तो पहले 10 लाख के ऊपर वो आपका रिबेट कैलकुलेट,
ठीक है। जो ऊपर वाली इनकम है उसमें हायर रेट के ऊपर टैक्सेशन करके आपको तो टैक्स चार्ज करेगा। इसी तरह जो आपका शेयर फ्रॉम ईओपी है, टैक्स शेयर फ्रॉम ईओपी, अगर वो क्लेम करें और उसके साथ अदर इनकम क्लेम करें तो अदर इनकम के ऊपर अपर स्लैब वाला जो रेट है वो लगाएगा, आपको जो क्रेडिट देगा वो फर्स्ट इनकम का देगा। इसलिए कानून यही है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के हिसाब से हायर स्लैब में जहाँ टैक्स होना है वो आपको हायर स्लैब। नहीं, लेकिन सर वो जैसे शेयर फ्रॉम एओपी ना, उसको तो लॉ बैकअप देता है ना कि ये रेट पर्पस के लिए ऐड होता है, रेट पर्पस के लिए ऐड है ना, लेकिन ये पीवीए और इसका रेट पर्पस के लिए एडिशन का कहीं तरह देखा नहीं। ऐसे ही ये ना ये अगर आपकी सिर्फ पेंशनर बहबूद की और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की इनकम होती है तो उस पर क्रेडिट कैसे मिलता है? वो कंसिडर करता है दिस इज योर फर्स्ट इनकम, ठीक है, इसीलिए उस पर क्रेडिट अलाउ करता है, उसको 5% का कैप करता है। जो इससे ऊपर वाली इनकम है उस पर जो रेट आ रहा होगा स्लैब रेट के मुताबिक वो टैक्स करेगा। अभी सिस्टम में यही है और लॉजिकल भी मेरे ख्याल में लीगली सिस्टम में भी हो गया, लॉजिकली भी हो गया, लीगली भी मेरे ख्याल मेरी राय यही है। हो सकता है आप डिफर करें, लेकिन मेरी हम्बल सबमिशन यही है कि जो फर्स्ट इनकम है उस पर आपको क्रेडिट जहाँ जहाँ आएगा ना, जहाँ क्रेडिट रिबेट एग्जाम्पशन आएगी ना, वो आपको मेरी राय के मुताबिक फर्स्ट इनकम के ऊपर। अच्छा सर, जो तीसरा सवाल है ना पेंशन का, वो मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो पीछे एग्जाम्पशन है सेकंड स्टेटमेंट में पार्ट 1 में वो क्लास 8 की, अब वो ये समझ नहीं आती है कि दोनों में से किसको ही करना है। वो तो कहता है कि हायर एग्जाम्प्ट होगा और लोअर जो है वो अब तक का 25 तक का होगा। तो अब ये मैं कौन सी फिगर कहाँ डालनी है, इसमें स्पेसिफिक नहीं किया हुआ रिटर्न। अच्छा, वैसे तो वो दोनों ही जगह आपको आगे एग्जाम्पशन का कॉलम ओपन देता है, आप दोनों जगह एग्जाम्पट लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी जगह लिखने का फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने हायर को ही एग्जाम्प्ट मानना है, आप चाहे उसको सैलरी वाले पोर्शन में लिख के आगे क्लियर पड़ जाए, या वो अदर वाला जो ऑप्शन है वहाँ जाके जहाँ एन्युटी और पेंशन दो लफ्ज आ रहे हैं वहाँ जाके कर लें। मेरा नहीं ख्याल को डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन मैं टैक्सेशन में कोई डिफरेंस आता है ऐसे कोई मुश्किल क्या है? यानी अगर सोर्स में ना लिखें बजाय उसके कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी है तो ये पेंशन ही मतलब कि ये सैलरी के रेलिवेंट्स में ही आएगा। इसमें जमीन साहब थोड़ा सा ये देखिएगा जरा, ये जो पेंशन का जो इशू है ये देखना है कि आपका मिली कहाँ से है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इट इज टू बी डिटरमिन्ड फर्स्ट वो ये है कि पहले जो गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज है, फेडरल की हो प्रोविंशियल की हो, वो उनकी अगर जो पेंशन आपको मिलती है रिटायरमेंट के बाद वो आपकी तो 12(2)(f) में जाएगी, ठीक है। फिर अब आ जाए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उधर वहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड होते हैं कमिश्नर से, कुछ अनअप्रूव्ड होते हैं। वहाँ आपने देखा कि वहाँ कुछ लिमिट भी बताई हुई कि यहाँ तक ये एग्जाम्प्ट होगी, यहाँ तक ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी। तो वो वाली जो होगी वो 39 में जाएगी, 39 सेक्शन में जाएगी एन्युटी और पेंशन के साथ। सर मेरा क्वेश्चन एक तो 155 सेक्शन का में वो सिस्टम जो है वो डबल मतलब वो आप उधर भी एक्सेस जमा कराते हैं, जब कंपटीशन में आते हैं तो फिर वहाँ पे भी टैक्स की लायबिलिटी जनरेट हो रही है। सेक्शन कौन सा रेंटल इनकम 155 इन्होंने बता दिया ना एक्सेस कैलकुलेशन। और दूसरा पॉइंट था शायद पहले डिस्कस हुआ जिसमें आपने कहा था कि अगर सैलरी के ऊपर टैक्स है और अदर सर्विसेज पे जैसे कमीशन के ऊपर है, कोई इंश्योरेंस कंपनी का कमीशन एजेंट भी है, उसमें सेक्शन 149 में सैलरी में टैक्स हो गया और सेक्शन 233 में उसमें कमीशन का टैक्स हो गया। लेकिन जब आप कंपटीशन में आएंगे तो उसमें फिर वो जो है ना अमाउंट को क्लब करके तो फिर दोबारा कहता है कि जी आप टैक्स की लायबिलिटी जनरेट कर रहा सिस्टम, वो कह रहा है कि और जमा करवाएं। अगर हम एक्सपेंस में डालेंगे तो मैं फिर एक्सपेंस कितने डालूंगा? अगर 20 लाख का कमीशन है, 19 लाख का एक्सपेंस डाला, कंपटीशन में आऊंगा तो वो फिर सैलरी स्लैब से ऊपर चला गया, फिर उसमें कहने का लायबिलिटी और जमा करें टैक्स, तो उसका फिर क्या करेंगे? ये आपकी जेन्युइन कंप्लेंट है, ये नोट कर लिया ऑलरेडी मैंने पहले बताया था 155 के इश्यूज में जो आ रहे हैं आपको 233 आपने फरमा दिया थी, ये भी विल हाईलाइट इंशाल्लाह डोंट यूज। अच्छा सर, एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कैपिटल इफेक्ट के बारे में कि उसके अंदर जो है लाहौर हाई कोर्ट है वो एफडीआर की फेवर में, बाकी जो 3 सूबे हैं वो टैक्स पेड की फेवर में, और मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सर्कुलेट है।
असल इशू ये है कि जब हम कैपिटल एसेट का टैग खोलते हैं उसमें एग्जेम्प्टेड ऑब्लिक स्टे ग्रांटेड बाय द कोर्ट 7 की बात कर रहा हूँ। और सर लाहौर हाई कोर्ट ने फेवर में दिया हुआ है FBR पे, और जितने भी हम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाते हैं वो 7 ही मांगते हैं। बेसिकली मैटर तो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में है। तो हम जो है जो पंजाब में जो लोग हैं उधर वाले तो नहीं करेंगे ना प्रोसेस, उधर वाले तो सिंपल ये वाली टैक्स लग करके उसको खत्म कर देंगे। इधर क्या प्रोसेस होगा, ये पंजाब में जो है वो हम उसको प्रॉपर फिल करें, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो नीचे आपने टैब दिया हुआ है FBR का वो उसके रेट्स दिए हुए हैं, क्या वो फेयर मार्केट वैल्यू है, कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू है, ये थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा पता पंजाब में को देना पड़ेगा अगर सुबह में नहीं है अभी मैटर दिया वो तक भी सिंध में भी हमारे खिलाफ है, बहुत सारी सर सिंध में भी खिलाफ है, पंजाब में भी खिलाफ है। पंजाब में ICA जो है वो हमारे खिलाफ होगी, पहले हमारे खिलाफ नहीं थी। तो इस वक्त जो जजमेंट इन फील्ड है हमारे लिए तो वही बनती है टेक्निकली कि अप्लाई होगा। अब ये पहली बात इसमें- आप ना पूछे कोई ज़्यादा बेहतर है, वो आप इससे ज़्यादा से आने करें क्या? आप नहीं आप करना उसको आप टैक्स दें, कानून तो ये कहता है आप टैक्स दें। डीम्ड इनकम पे कल को अगर रिवर्स होगी फिर वो बात की बात है, आज उन्होंने तो वापस नहीं देना था। आज तो कानून है ना भाई, वो बाद में एडजस्टमेंट लेगा। सर वैसे किस्तें कर देते हैं, अगर रिटर्न में किसी के पैसे बन रहे हो और पैसे भी ना हो तो किस्तें कर देते हैं किस चीज की इंस्टॉलमेंट्स कैश टैक्स की टैक्स लायबिलिटी टैक्स 137 में जो आपको बनाया इसमें जो बात कर रहे हैं जेन्युइन इशू ये है कि जहाँ आपने लिविंग प्रोविजन में टैक्स रखा है और टैक्स पेयर कुछ करता नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी है 7 में लाइबिलिटी राइज हो गई है, उसका कैश जनरेशन है ही नहीं, तो उसको आप क्या रास्ता दे रहे हैं? आप उसकी प्रॉपर्टी रियलाइज करेंगे तब इसमें जेन्युइन इशू है, एक हार्डशिप का इशू है। ठीक है, बात आपकी ठीक है। वो फिर रिटर्न उस वक्त तक एक्सटेंशन लेता है जब तक उसके पास पैसे नहीं। रिटर्न तो देखिए, फाइल अगर उसने करनी है तो लाइबिलिटी पे ऑफ करके कर, तो उस वक्त तक फिर एक्सटेंशन लेने जब तक पैसे उसकी लिक्विडिटी नहीं आ जाती, उसके पैसे रियलाइज नहीं हो जाते, तो उस वक्त तक फिर एक्सटेंशन। फॉर्म 7E का नहीं हो सकता है, किसका 7E का फॉर्म ही ना कर दें पोस्टपोन। कौन पड़ी अपनी मर्जी है। मैं क्या कुछ साल को बोले से आ रहे हो, मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा है ना, वो कहता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, या तो मुझे दिसंबर तक का टाइम मिले, तो दिसंबर तक आपको इस दफा वैसे ही मिलता है। 17 अगस्त को तो उन्होंने नोटिफाई किया है। चले, इसमें ऐसा है कि ऑनरेबल गेस्ट जो है उन्होंने कहीं जाना है, तो बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा कोई जरूरी क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं, वरना फिर इन रिटर्न दे दीजिएगा उसको। प्रॉफिट और डेट का जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 अब ऑनवर्ड तो वो होल्डिंग पीरियड खत्म हो गया, पिछला होल्डिंग पीरियड 6 साल का था, 7 साल का। डिजीज डेथ हो गई किसी की, जो इनहेरिटेड हम सर्टिफिकेट देते हैं टू कोर्ट्स, बात कर ऐसा होता है कि 5 साल बाद 4 साल बाद लोगों ने इनहेरिटेड सर्टिफिकेट लिया, तो फिर इनहेरिटेंस स्टडी उनके नाम एक्चुअल किताबों में, बंदा मर गया 10 साल पहले, इनहेरिटेंस जो किताबों में चढ़ी इंतकाल हुआ है, बाकी वो हुआ 4 साल पहले सपोज। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ कि जैसे ही बंदा फौत होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स की हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट का मैं थोड़ा सा अगर मैं लीगली समझना चाह रहा हूँ, बट सर डेट ऑफ डेथ से कंसीडर करें, स्टार्ट होगी लिमिटेशन डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ से हम कहते हैं कि सपोज 6 साल हो गए तो हम उसके उसी दिन से लिमिटेशन आपकी शुरू होगी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये था उसी दिन से, चाहे हमने उसका सर्टिफिकेट बाद में लिया 5 साल बाद आया। लिमिटेशन एक्चुअल जो उसकी है वो उसी दिन स्टार्ट होगी, क्योंकि बाय विर्चू ऑफ लॉ और बाय नेचर ऑफ लॉ जो एक्चुअल उस शख्स की ओनरशिप थी वो उसी दिन शुरू होगी जिस दिन उसके वालिद का इंतकाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो ये है, बस उसी की रोशनी में लिमिटेशन वाली स्टार्ट होगी। दूसरा एक चीज और क्वेश्चन है, ये जो बैंक के अकाउंट्स होते हैं ज्वाइंट अकाउंट्स, इसकी ट्रीटमेंट रिटर्न में कैसे करते हैं? कोई एक बंदा डिक्लेयर कर देता है अपने अकाउंट में
वेल्थ स्टेटमेंट ठीक है, दोनों डिक्लेयर करते हैं, उसमें लिख देते हैं कि जी हमारा ये ज्वाइंट अकाउंट है, आपकी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट नंबर 1 वेल्थ। अच्छा, इसमें ना बट सब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। जैसे दो लोग बिजनेस कर रहे हैं इकट्ठे और इक्वल पार्टनरशिप की बेस पर कर रहे हैं, उन्होंने कोई ज्वाइंट अकाउंट खोला है, उन लोगों का उसमें जो शेयर है वो इक्वल लिखा जाता है, ठीक है। तो वो दोनों को, मेरी राय के मुताबिक उन दोनों को डिक्लेयर करना जरूरी है। हमारे बहुत सारे केसेस में जैसे घर में बेटे का और बाप का अकाउंट खुलता है, एक्चुअल जो पैसा है, जो ट्रांजैक्शन है वो वाले या बेटी जिसकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगी उसी को वो डिक्लेरेशन में देना चाहिए। वाइफ के साथ बहुत सारे लोगों का है, तो जो अगर तो आप जाहिर बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपका ही पैसे का इन्फ्लो, वो हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती है, तो आपकी रिटर्न में ही हुआ रहेगा। एक वाला क्लियर करेगा, एक इस सूरत में एक जहां बिजनेस टर्म्स हैं, कहीं आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार की कोई रेशो अपने तय की है और उस अकाउंट को अगर आप जॉइंट को मेंटेन कर रहे हैं, मेरी राय ये है कि जो रेशो आपने डिसाइड की है उसी रेशो से वो आप दोनों बंदे अकाउंट अपना अपना बैलेंस का अपना इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि सपोज दो आउट ऑफ बिजनेस ये ज्वाइंट अकाउंट बने हुए हैं और ज्वाइंट अकाउंट में अगर एक बंदा डिक्लेयर करता है और ज्वाइंट अकाउंट में प्रॉफिट एंड डेट आ जाता है उनका मोर देन 5 मिलियन, सपोज मोर देन 5 मिलियन आया तो वो चलेगा मिनिमम में। जैसे ही मिनिमम में गए तो उनको स्लैब लगे 35% की, 30% की, 15% से, लेकिन है वो ज्वाइंट अकाउंट। अब 70 लाख का प्रॉफिट आ गया, अगर वो आधा डालेंगे तो दोनों बच जाएंगे, सपोज एक डालेगा तो लग जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो? नहीं, उसमें जो मेरी राय ये है कि जो शख्स डिपॉजिटर है उस पैसे को, भले वो एक बंदा है तो वही बंदा उसको डिक्लेयर करेगा। टैक्स की तो बात की बात है ना, ज्वाइंट अकाउंट में ज्वाइंट नहीं, ज्वाइंट अकाउंट में देखें, ज्वाइंट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। ज्वाइंट कहने से दोनों का पैसा बराबर नहीं हो जाता। मैंने और आपने अकाउंट खोला, आप उसमें पैसे जमा कराते रहे हर रोज, मैं उसमें बराबर के हिस्सेदार तो नहीं बन गया ना, पैसा तो आपका पड़ा है। मैं फॉर द डिफरेंट पर्पजेज, हो सकता है मैं मुझे आपने सिर्फ इस बात का मीन बनाया हो और साथ जो ज्वाइंट अकाउंट खोला हो कि आप अवेलेबल नहीं होते, आपके बिहाफ में मैं कोई चेक साइन कर दूं, आपके बिहाफ में ट्रांजेक्शन कर दूं। ये बहुत सारे केसेस में आपने आइडेंटिफाई करना है बेसिकली कि जो पैसा उस अकाउंट में आ रहा है वो किसका पैसा है, जिस शख्स का पैसा है, किसके बैंक अकाउंट से जा रहा है, किसके बैंक अकाउंट से जा रहा है, ये उसमें कैश कौन जमा करा रहा है, ये किसके बिहाफ में पैसा रिसीव हो रहा है। दो लोग हैं, जरूरी तो नहीं कि आपके भाई हैं सरकारी जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो उनका तो पैसा नहीं आ रहा, आपका आ रहा है ना। ये तो एक ट्रीटमेंट आप समझ आ कानूनी तौर पे देखें, आपने डिफरेंशिएट करना है कि किस बंदे का पैसा आया और किस बंदे ने उसमें से विड्रॉल ली। जिस शख्स का जितना उसमें पैसा आया उसने उतना ही शेयर आपने डिटरमिन करना और जमा कराना। अगर एक ही बंदे का पैसा आ रहा है, दूसरा साइलेंट पार्टनर है सिर्फ, तो एक को जाना है, भले उसका टैक्स बनता वो दो। इसमें हम आपकी बात भी समझ आ रही है, लेकिन मेरा फर्दर क्वेश्चन ये, मैं इसमें आपको एक बदल बात, ज्वाइंट लिखने से ज्वाइंट नहीं होता। प्रॉफिट डेट जब केस बनाते हैं तो ऐसे देखते हैं कि बैंक से इंफॉर्मेशन हमें आती है कि जी इस अकाउंट से इतना टैक्स कटा है, इतना डिपॉजिट है, इतना इसके पूरे साल बाद इतना प्रॉफिट मार्कअप मिला और इतना टैक्स कटा, फिर हम उसे वर्क बैक करते हैं 0.15 से या 0.2 से जो भी रेट है। तो मेरे राय के मुताबिक एक ही बंदा डिक्लेयर करेगा इसको, और अगर आप इसको कह रहे हैं डिवाइड करना तो वो आई थिंक इलीगलिटी में चला जाएगा, क्योंकि वो टैक्स फिर कम हो जाएगा स्लैब। अगर आप 50 लाख पर जाते हैं तो सारी अमाउंट ही नॉर्मल टैक्स में आ जाएगी, दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये मैं बेसिकली टेक्निकल पॉइंट यही था जो मैं जोई साहब को की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई अपने लिए करना चाहता हूँ। अगर दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट है, सपोज किसी भी एंड डे अगर उसको बाइफरकेट करें तो 60% एक इन्वेस्टमेंट है, 40% दूसरी इन्वेस्टमेंट है, जो थ्रू प्रॉपर चैनल साबित भी होती है। हाँ तो फिर ठीक है, मैंने वही कहा ना कि आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर? अगर आप उसमें गाइड करें कि अगर दो पार्टनर्स हैं और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है डिपॉजिट्स में, रनिंग में, सपोज एक 60% 40% वाला है, तो दोनों की अगर हम बैलेंस है सपोज 10 करोड़ का, 10 करोड़ पर एक से 6 करोड़ का डिपॉजिट हम शो कर देते हैं, साबित कर सकते हैं, उसका 4 करोड़ कर सकते हैं,
प्रॉफिट एंड डेट अगर होता है 70 लाख रुपया, तो फिर अगर वो बाइफरकेट कर दे तो इससे में अगर 35 लाख दूसरी के 40 लाख दूसरी के 25 लाख 50 लाख इस तरह से निकल जाएंगे। तो क्या हम इसको लीगली इस्तेमाल करें कि ये चीज ऐसा गलत हो? ऐसा कि मेरे सामने तो आया नहीं वैसे अपना डॉक्टर साहब देखिए, अब लॉ चेंज हो गया हुआ है। अब वेस्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे 116 सेक्शन के, वो से सुनिएगा बात मेरी, 116 सेक्शन को, उसमें लिखा हुआ है कि जो एसेट्स है, बैंक कौन भी जो एसेट है ना आपका, जो एसेट्स है वो एक नाम पे आएंगे अगर वो आपका डिपेंडेंट है, अगर वो आपका डिपेंडेंट है। अगर बीवी या ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है और बीवी टैक्स पेयर नहीं है, वो आप पे डिपेंड कर रही है, तो फिर वो आपकी रिटर्न में आना है वेस्ट स्टेटमेंट। ये तो होगी पर्सनल एसेट्स की बात। अब आ जाए बिजनेस एसेट्स की बात। अगर इसमें दोनों फाइलर हो फिर नहीं, क्वेश्चन पर्सनल में बात आप कर रहे हैं। पर्सनल में अगर दोनों फाइलर हैं, दोनों एनटीआर होल्डर है, तो फिर वो जो डिपेंडेंट वाली बात निकल जाएगी इधर से, फिर वो सेपरेटली अलग अलग शो होगा। 50% या जो भी रेशियो की होगी वो सेपरेटली काउंटर का शो होगा। क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट जो भी उनकी है वो अलग अलग शो होगा। ठीक है, अच्छा अगर बिजनेस है तो बिजनेस में भी ये देखना पड़ेगा। बड़ी अहम चीज ये है कि ज्वाइंट कौन खुल जाता है, बाप बेटे का, सिर्फ बाप ही जो है वो टैक्स गुजार होता है, ठीक है, बेटा टैक्स गुजार नहीं है। तो अब वो जो बैंक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस हमने शो करता है ना, वो बाप में ही जाएगा क्योंकि बेटा जो है वो टैक्स गुजार नहीं है। लेकिन अगर एओपी बनी हुई है और दोनों टैक्स गुजार है, उसके मेंबर है, तो फिर ज्वाइंटली 50% जो भी शेयर होगा उनकी बिजनेस के बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपके थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफिकेशन। फिर भी अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मुझे क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं मिलेगा। अकाउंट चलें, आप ऐसे कर लीजिएगा प्लीज। आई हैव रिक्वेस्टेड कि ऑनरेबल गेस्ट ने कहीं जाना है, उनकी मीटिंग है, तो पर्सनली जो है वो राणा साहब से सेटिंग कर लें या कमर भाई से, तो या बाद में कैरी ऑन रखें। मेरा सवाल ये आप मुख्तसर अंदर कर लें साहब, बिकॉज़ ही इज रिक्वेस्टिंग अगेन। मेरा सवाल ये है सर, वालिद साहब फौत हो जाते हैं और वो उसके 4 बच्चे हैं, 4 प्रॉपर्टी हैं, वो कोर्ट में जाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या एक्सचेंज से, वो जो है ना कोर्ट की 4 प्रॉपर्टी, 4 बेटे, 4 बेटे, उन्होंने चारों को ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यानी डिसीजन से पहले आपस में एक्सचेंज कर ले, आपने ये लेनी, आपने ये लेनी, ये लेनी। कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि ठीक है ये प्रॉपर्टी इनको सबको दे दें जो उन्होंने की। आया उस पर जो है उस पर टैक्स लगेगा 236 के या 200 जो भी लगेगा टैक्स, और पीआर का कौन सा टैक्स नहीं लगेगा उस पर टैक्स। जिसका गिफ्ट होता है ना, जिस गिफ्ट मिलता है किसी भाई, कोई ब्लड रिलेशन देता है, उस पर आप जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं ना सर, उस पर टैक्स नहीं करता, ना तो 36 का करता है ना केयर करता है, वो विदाउट टैक्स होता है ट्रांसफर। सर नहीं, वो ऐसे होता है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है ना कि आप ये प्रॉपर्टी, जब वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाता है टैक्स होता है, तो मेरे सामने आगे कोर्ट के डायरेक्शन के बाद रजिस्ट्री हो रही है या वो एक दूसरे के हाथ में दस्तबरदारी नामा कर रहे वो हैं? ट्रांसफर हो रही है, अथॉरिटी वाले कहते हैं इसमें 236 के पड़ेगा, नोटिफिकेशन आया था, 236 के पड़ेगा, नोटिफिकेशन आया पड़ेगा। उसमें सर 4 आदमी जो प्रॉपर्टी बताई है, चारों की वैल्यू सेम है, मुख्तलिफ है ना, जो आपस में वो उन्होंने आपसे बड़ा वैलिड सवाल किया है कि क्या वो डायरेक्ट उनकी ट्रांसफर हो रही है या एक दूसरे के साथ वो दस्तबरदारी हो रही है ना। अगर एक की वैल्यू 1 करोड़ रुपया, दूसरी की 1.5 है, एक की 2 करोड़ है, सर तो उन्होंने जाती तौर पर तो वो डिवाइड कर ली, लेकिन कोर्ट में जिसका शेयर ज्यादा बनता है उसने दस्तबरदार होना है कि दूसरे के सेटलमेंट की एक प्रॉपर डीड बनती है जिसको दस्तबरदारी नामा कहते हैं। सर वो सारा फाइनल हो रहा है जब वो निकलता, जैसे वाटर टाउन में कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो आते हैं ट्रांसफर कराते हैं, वो आपको कहते हैं कि 236 के पड़ेगा। ये मैंने पूछा टैक्स पड़ेगा उसको, वो कहते हैं पड़ेगा उसको। मेरा ख्याल है कि वो मैं भी गया दफ्तर उन्होंने भी कहा पड़ेगा, आप कहते पड़ेगा।
उसमें नोटिफिकेशन है 236C पड़ेगा ये के पड़ेगा? नोटिफिकेशन है ये वाला जो प्रॉपर्टी 236 ये वाला है ना जी सर 4 नोटिफिकेशन है इसका जी जी आप मेरे अभी हम इसे कंक्लूड कर रहे हैं, आप हमसे मिलने ठीक है, तो ये सारा आपसे काम मिलेगा ये इधर ही अंदर ही भाई तुझे जितना चलो एनी हो मिर्जा साहब सर आपको आप ही अकेले में मिलना है सर, सारे मिल लेना मैं चले चले। अभी ये वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जॉइंट सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार एसोसिएशन जिशान दास भट्ट साहब से। Respected guest of honor, Mr. Bilal Zamir, Additional Commissioner of Revenue, respected panelists, Mr. Asif Rana Saab, and our very own respected Mr. Chaudhary Kamar Zaman Saab, cabinet members of the Hot Expo Association, respected senior colleagues, members, Assalamu alaikum and very good afternoon. First of all, I would like to thank the chief guest and the guest of honor for this precious time and for visiting the Hot Expo Association. Secondly, I would like to thank all the worthy members of the bar who came and participated in today's discussion. Your presence shows that we want to learn, we want to grow, and we want to keep ourselves updated with all the latest opinions of laws. And I assure you that the cabinet of Lahore Tax Bar Association is fully committed to serve you and will keep on arranging these kinds of lectures, workshops, seminars, and discussions for the betterment of bar members. And inshallah ta'ala will address every single issue raised by every single member of the bar. Thank you very much. Thank you very much. सर ये लेक्चर भी जो है ना उसमें शिफ्ट कर दीजिएगा। हो गया सर, हो जाएगा सर।